کیا آپ نے خیال کیا کہ غار اور لوح والے ہمارے نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ لازوال قربانی، اصحاب کہف کا سنہری واقعہ۔ زمان ظلم و ستم کا پس منظر، شہر افسوس، بت پرستی کا گہوارہ، دیسوس ظالم بادشاہ کا تعارف، ایمان کی تلاش، چند نوجوانوں کی بیداری، غار کی طرف ہجرت کا فیصلہ، معجزہ 309 سال کی نیند، بیداری، نیا زمانہ نیا شہر، سکوا اور روٹی، حیرت انگیز واقعات، بادشاہ اور عوام، ایمان کی پہچان، واپسی، اللہ کی طرف پلٹنا، عبرتناک انجام، عبرت کا پیغام، نتیجہ، اصحاب کہف کا ابدی پیغام۔ تفصیلی داستان، تعارف، زمان ظلم و ستم کا پس منظر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا آپ نے خیال کیا کہ غار اور لو والے ہمارے نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ سورۃ الکہف 9۔ یہ داستان اس زمانے کی ہے جب رومی سلطنت اپنی طاقت کے نشیب و فراز سے گزر رہی تھی۔ تیسری صدی عیسوی کا زمانہ تھا جب روم میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، مگر ان میں سے ایک بادشاہ دیشس نے اپنی ظلم و ستم کی داستان چھوڑی۔ اس نے 249 سے 251 عیسوی تک حکومت کی اور اس دوران اس نے مشرکانہ عقائد کو فروغ دیا اور توحید کے علمبرداروں کو بے دردی سے قتل کروایا۔ رومی سلطنت اس وقت دو حصوں میں تقسیم تھی، مشرقی رومی سلطنت اور مغربی رومی سلطنت۔ اصحاب کہف کا واقعہ مشرقی رومی سلطنت کے علاقے ایفسس میں پیش آیا، جو آج کل ترکی کے شہر سلچوک کے قریب واقع ہے۔ شہر افسوس، بت پرستی کا گہوارہ۔ ایفسس رومی سلطنت کا ایک خوبصورت اور مشہور شہر تھا۔ یہ شہر تجارت، ثقافت اور مذہب کا مرکز تھا۔ یہاں دیوی آرٹمس کا بہت بڑا مندر تھا جو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک شمار ہوتا تھا۔ لوگ دور دور سے اس مندر میں آ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ شہر کی گلیاں سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھیں اور ہر طرف بڑے بڑے ستون اور خوبصورت عمارتیں تھیں۔ بازار میں ہر قسم کی چیزیں ملتی تھیں، ریشم، مسالے، سونا، چاندی اور غلام۔ لیکن اس ظاہری خوبصورتی کے پیچھے ایک اندھیرا چھپا ہوا تھا، شرک اور بت پرستی کا اندھیرا۔ شہر کے وسط میں ارتمس کا مندر تھا جہاں ہر سال بڑے میلے لگتے تھے۔ ان میلوں میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے، ناچتے گاتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ مندر کے پجاری بڑے بااثر تھے اور ان کا شہر کی سیاست پر گہرا اثر تھا۔ اس شہر میں چند نوجوان رہتے تھے جو دلوں کے اندھیرے میں روشنی کی تلاش میں تھے۔ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بیزار تھے اور سچائی کی راہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ان نوجوانوں کے نام تھے میکسیمیلیان، مارینس، سرجیوس، دیونیسیس، جان، سیرپیون اور قسطنطین۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ دیسوس ظالم بادشاہ کا تعارف۔ جب دیسوس رومی سلطنت کا بادشاہ بنا تو اس نے دیکھا کہ سلطنت میں مسیحیت پھیل رہی ہے اور لوگ بت پرستی چھوڑ کر توحید کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس رجحان کو روکنا ضروری ہے۔ دیسوس نے ایک فرمان جاری کیا، شہر افسوس کے تمام باشندوں پر لازم ہے کہ وہ ارتمس دیوی کی پوجا کریں اور اس کے سامنے سرنڈر کریں۔ جو شخص ایسا نہیں کرے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ بادشاہ نے شہر کے ہر محلے میں سپاہی تعینات کر دیے اور لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کیا۔ جو انکار کرتا اسے فوراً گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا جاتا اور پھر اسے شیروں کے سامنے پھینک دیا جاتا۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ ڈرتے ڈرتے مندروں میں جاتے اور بتوں کو سجدہ کرتے، مگر چند نوجوان ایسے تھے جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور کسی بت کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہ تھے۔ ایمان کی تلاش، چند نوجوانوں کی بیداری۔ یہ نوجوان شہر کے معزز خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والدین شہر کے بڑے تاجر، عہدیدار اور زمیندار تھے۔ لیکن ان نوجوانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی تھی کہ یہ بت بے جان ہے، نہ انہیں دیکھنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی، نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی اور نہ نقصان کی۔ ایک دن یہ نوجوان شہر سے باہر کھیتوں میں گئے۔ وہاں ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی جو چھپ کر توحید کا پیغام دے رہے تھے۔ بزرگ نے انہیں بتایا کہ آسمان و زمین کا خالق صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
इसने उन्हें पिछले अंबिया के किस्से सुनाए जिन्होंने अपनी कौमों को तौहीद की दावत दी। नौजवानों के दिल बुजुर्ग की बातों से मुनव्वर हो गए। उन्होंने अपने दिलों में महसूस किया कि यही सच्चाई है। वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आए और बुतों से बेजारी इख्तियार कर ली। वो शहर वापस आए तो उनके चेहरों पर एक अनवर पिन था। उन्होंने अपने घरों में बुतों की पूजा करने से इनकार कर दिया। वालिदैन परेशान हुए, उन्होंने समझाया धमकाया, मगर नौजवान अपने ईमान पर कायम रहे। बादशाह का हुक्म और नौजवानों का इम्तिहान। दीसूस बादशाह अफसोस शहर आया। इसके आने की खबर सुनकर शहर में रौनक आ गई। मंदिरों को सजाया गया, बुतों को धोया गया और हर तरफ चरागा किया गया। बादशाह ने ऐलान किया कि कल एक बड़ी तकरीब होगी जिसमें तमाम शहरी इरतमिस देवी की पूजा करेंगे और बादशाह को खराज अकीदत पेश करेंगे। सुबह हुई तो शहर के तमाम लोग मंदिर के सामने जमा हो गए। बादशाह अपने शाही तख्त पर बैठा और फौजियों ने चारों तरफ घेरा डाल लिया। एक एक करके लोग आगे आते, बुत को सजदा करते और बादशाह को सलामी देते। जब उन नौजवानों की बारी आई तो वो एक तरफ खड़े हो गए और आगे ना बढ़े। बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया और पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने गुस्से से पूछा, तुम लोग क्यों नहीं झुकते देवी के सामने? नौजवानों के सरदार मैक्सिमिलियान ने जवाब दिया, बादशाह सलामत। हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं जिसने आसमान और जमीन पैदा किए। ये बुत जो तुम पूजते हो ये खुद तुम्हारे बनाए हुए हैं, उनमें कोई ताकत नहीं। बादशाह को गुस्सा आया, लेकिन इसने नौजवानों की इज्जत दाराना वजह देखकर उन्हें मौका दिया। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं। इस दौरान तुम सोच लो। अगर तुमने देवी की पूजा कर ली तो तुम्हें इनाम दूंगा, वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। नौजवानों ने कहा, हमने अपना फैसला कर लिया है। हम किसी और माबूद को नहीं मानेंगे सिवाय इसके जो हमारा रब है। बादशाह ने उन्हें कैद में डालने का हुक्म दिया और कहा कि 3 दिन बाद उनका फैसला किया जाएगा। गार की तरफ हिजरत का फैसला। नौजवानों को कैद खाने में डाल दिया गया। रात को जब सब सो गए तो उन्होंने आपस में मशवरा किया। उन्हें यकीन था कि वो अपने ईमान पर कायम रहेंगे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि बादशाह उन्हें कत्ल कर देगा। मैक्सिमिलियान ने कहा, हमें शहर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह की जमीन वसी है। हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां हम अपने रब की इबादत कर सकें। दूसरे नौजवानों ने इस तजवीज को पसंद किया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो उन्हें निजात दे और उनके रास्ते आसान करे। कैद खाने के पहरेदारों में से एक पहरेदार उन नौजवानों से हमदर्दी रखता था। वो चुपके से आया और उसने दरवाजा खोल दिया। नौजवान बाहर निकले और शहर से बाहर की तरफ भागे। उनके साथ उनका कुत्ता कतमीर भी था जो उनका वफादार साथी था। रात की तारीकी में वो पहाड़ों की तरफ भागे। वो नहीं जानते थे कि कहां जा रहे हैं, बस अल्लाह पर भरोसा था। सुबह हुई तो वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां एक गार नजर आया। गार का मुंह कुछ छोटा था लेकिन अंदर काफी जगह थी। थके हारे नौजवानों ने गार में पनाह ली। उनके पास खाना भी था, कुछ रोटियों की सूरत में। उन्होंने वो रोटियां आपस में तकसीम की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। गार में मौजिज़ा, 309 साल की नींद। नौजवानों ने गार में दाखिल होकर अल्लाह से दुआ की, ए हमारे रब, हम पर अपनी रहमत फरमा और हमारे काम में आसानी पैदा फरमा। सूरत अल-कहफ 10। जब वो सो गए तो अल्लाह ताला ने उन पर गहरी नींद डाल दी। कुरान मजीद में है, बस हमने उनके कानों पर गिरजे की आवाजें यानी नींद डाल दें कई साल तक। सूरत अल-कहफ 11। ये नींद 309 साल तक जारी रही। अल्लाह ताला ने उन्हें इसी हालत में महफूज रखा। सूरज जब तुलू होता तो उनके गार से दाएं तरफ मुड़ जाता और जब गुरूब होता तो बाईं तरफ से गुजर जाता ताकि उनके जिस्मों को धूप की तपश न पहुंचे। सूरत अल-कहफ 17। गार में एक अजीब फिजा थी। नौजवान सोए हुए थे जैसे अभी नींद से उठेंगे। उनकी सांसें चल रही थीं, उनके चेहरे तरोताजा थे। उनके साथ कुत्ता कतमीर गार के मुंह पर अपने अगले पांव फैलाए लेटा था जैसे पहरा दे रहा हो। बादशाह और अवाम, ईमान की पहचान। जब नौजवानों की तलाश जारी थी, बादशाह दीसूस को पता चला कि वो शहर से फरार हो गए हैं। इसने सिपाहियों को उनकी तलाश में भेजा।
सिपाही पहाड़ों में गए लेकिन उन्हें कुछ ना मिला। एक सिपाही ने बताया कि इसे एक गार नजर आया है लेकिन इसका मुंह बंद था। सिपाहियों ने गार के करीब जाने की कोशिश की लेकिन उन पर ऐसी दहशत तारी हुई कि वो वापस भाग आए। बादशाह ने कहा, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, वो गार में मर जाएंगे और उनकी हड्डियां भी ना मिलेंगी। इस तरह लोग उन नौजवानों को भूल गए। साल गुजरते गए, सदियां गुजर गईं। सल्तनतें बदलें, बादशाह बदले। रूमी सल्तनत में मसीहियत फैली और फिर वही मजहब सरकारी मजहब बन गया जिसे कभी सख्ती से दबाया जाता था। तीसरी सदी गुजरी, चौथी सदी गुजरी, पांचवीं सदी शुरू हुई। अब शहर अफसोस में मसीही बादशाह थे और लोग अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए हुए थे। बुतों के मंदिर गिर चुके थे और उनकी जगह गिरजा घर बना दिए गए थे। बेदारी, नया जमाना, नया शहर। जब 309 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने नौजवानों को बेदार किया। कुरान मजीद में है, फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम देखें कि दो ग्रोहों में से कौन उनके ठहरने की मुद्दत का ज्यादा हिसाब रखता है। सूरत अल-कहफ 12। नौजवान जागे तो उन्हें लगा जैसे वो एक दिन इससे कुछ कम सोए हों। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, हम कितनी देर सोए? किसी ने कहा, शायद एक दिन इससे कम। फिर उन्होंने कहा, हमारा रब ही बेहतर जानता है कि हम कितनी देर सोए हैं। सूरत अल-कहफ 19। अब उन्हें भूख महसूस हुई। मैक्सिमिलियान ने कहा, हमें खाने की जरूरत है, कोई शहर जाए और खाना लाए, लेकिन होशियारी से जाए, कहीं कोई पहचान ना ले। उन्होंने अपने एक साथी को मुंतखब किया और इसे कुछ चांदी के सिक्के दिए। उन्होंने कहा, शहर जाओ और देखो कि कौन सा खाना पाकीज़ा है, इसमें से कुछ खरीद लाओ और निहायत एहतियात से आना, कहीं कोई तुम्हें पहचान ना ले। अगर किसी ने पहचान लिया तो वो हमें पत्थर मार देंगे और जबरदस्ती अपने दीन में दाखिल कर लेंगे। सूरत अल-कहफ 19-20। सकुआ और रोटी, हैरत अंगेज वाकया। नौजवान शहर की तरफ रवाना हुआ। वो रास्ते में हैरान था कि पहाड़ और वादियां बदली हुई है। वो शहर के करीब पहुंचा तो शहर की दीवारें बदली हुई थीं। शहर के दरवाजे पर पहरादार भी नए थे और उनके लिबास भी मुख्तलिफ थे। इसने पूछा, ये कौन सा शहर है? पहरादारों ने कहा, अफसोस शहर। नौजवान हैरान हुआ कि ये तो वही शहर है, मगर कैसे बदल गया? वो शहर में दाखिल हुआ तो बाजार भी बदले हुए थे, लोगों के लिबास बदले हुए थे, जुबान भी कुछ मुख्तलिफ थी। वो एक नामबाई की दुकान पर गया और रोटी लेने लगा। इसने नामबाई को पुराने जमाने का सिक्का दिया। नामबाई ने सिक्का देखा तो हैरान रह गया। इसने पूछा, ये सिक्का तुम्हें कहाँ मिला? नौजवान ने कहा, ये मेरे पास है, रोटी दो। नामबाई ने सिक्के को गौर से देखा। इस पर बादशाह दीसूस की तस्वीर बनी हुई थी जो 300 साल पहले मर चुका था। नामबाई ने पूछा, क्या तुमने कोई खजाना पाया है? ये सिक्का तो बहुत पुराना है, बादशाह दीसूस के जमाने का। नौजवान घबरा गया। इसने सोचा कि शायद इसे पहचान लिया गया है। वो जल्दी से जाने लगा लेकिन लोग उसके गिर्द जमा हो गए। किसी ने कहा, ये कोई जासूस है या कोई पुराने जमाने का आदमी है। बादशाह और अवाम, ईमान की पहचान। इतना हुआ कि शहर का हाकिम वहां से गुजरा। इसने देखा कि लोग एक नौजवान के गिर्द जमा है। इसने पूछा, क्या बात है? नानबाई ने सिक्का हाकिम को दिया और सारा वाकया बताया। हाकिम ने नौजवान से पूछा, बताओ तुम कौन हो और ये सिक्का तुम्हें कहाँ मिला? नौजवान ने कहा, मैं इस शहर का रहने वाला हूं, मेरे साथ मेरे कुछ साथी हैं। हम दीसूस बादशाह के जमाने में शहर से बाहर निकल गए थे और एक गार में सो गए थे। अभी अभी हम जागे हैं। हाकिम हैरान रह गया। इसने कहा, दीसूस बादशाह तो 300 साल पहले मर गया था, तुम किसका जिक्र कर रहे हो? नौजवान ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मेरे साथ मेरे साथी गार में हैं, चलूं तुम्हें ले चलता हूं। हाकिम और शहर के बड़े लोग नौजवान के साथ गार की तरफ चले। रास्ते में नौजवान उन्हें बता रहा था कि वो कैसे शहर से निकले, कैसे ईमान लाए और कैसे गार में पनाह ली।
गार के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 7 नौजवान सोए हुए हैं जैसे अभी सोए हों। उनके चेहरे नूरानी थे, बाल और कपड़े बिल्कुल ताजा थे। साथ में कुत्ता कतमीर भी लेटा था। हाकिम ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है। ये वही लोग हैं जिनका जिक्र आसमानी किताबों में है। इसने नौजवानों को सलाम किया और कहा, आप अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं। अपने हमारे लिए ईमान की रोशनी छोड़ी, वापसी अल्लाह की तरफ पलटना। नौजवानों ने शहर के लोगों को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वो एक नए जमाने में जागे हैं। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या तुम लोग अल्लाह की वहदानियत को मानते हो? लोगों ने कहा, हाँ, हम अल्लाह को मानते हैं, इसका कोई शरीक नहीं। हमने बुत परस्ती छोड़ दी है। नौजवानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी कौम हिदायत पा गई। उन्होंने लोगों को नसीहत की कि ईमान पर कायम रहो, नमाज कायम करो, नेकी करो और बुराई से बचो। फिर वो गार में वापस आ गए। उन्होंने लोगों से कहा, हमें तन्हा छोड़ दो, हमें अपने रब से मिलना है। लोग वापस चले गए। नौजवानों ने गार में अल्लाह की इबादत की और दुआ की, ए अल्लाह, तू ही हमारा रब है। तूने हमें इस दुनिया में दोबारा जिंदा किया ताकि लोग तेरी निशानी देखें। अब हमें अपने पास बुला ले। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनकी रूहें कब्ज कर लीं। जब लोग दोबारा गार में आए तो उन्होंने देखा कि नौजवान अल्लाह से जा मिले हैं। इबरतनाक अंजाम, इबरत का पैगाम। शहर के बादशाह और अवाम ने मशवरा किया कि इन नौजवानों के साथ किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक इमारत बना दो, अल्लाह ही उनके हाल को बेहतर जानता है। दूसरों ने कहा, हम उनकी जगह पर मस्जिद बनाएंगे। सूरत अल-कहफ 21। चुनांचे उन्होंने गार के मुंह पर एक मस्जिद तामीर कर दी ताकि लोग उन्हें याद रखें और अल्लाह की कुदरत को पहचानें। कुरान मजीद में है कि लोग उनकी तादाद के बारे में मुख्तलिफ बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहते थे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। कुछ कहते थे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। अल्लाह ताला फरमाता है, कह दीजिए कि मेरा रब उनकी तादाद को खूब जानता है, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सूरत अल-कहफ 22। असहाब कहफ का वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत से कोई चीज़ बईद नहीं। वो मर्दों को जिंदा कर सकता है, वो सोए हुए को सदियों बाद जगा सकता है। नतीजा, असहाब कहफ का अबदी पैगाम। असहाब कहफ का वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं बल्कि हर ज़माने के मुसलमानों के लिए एक रोशन मिसाल है। इस वाक़ये से हमें कई सबक मिलते हैं। ईमान की ताकत। इन नौजवानों ने बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने ईमान की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने दुनियावी इज्जत, खानदान, दौलत सब कुछ छोड़ दिया मगर अल्लाह को ना छोड़ा। तवक्कल अली अल्लाह। जब वो गार में गए तो उन्हें मालूम न था कि क्या होगा, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। अल्लाह ने उनकी हिफाजत की और उन्हें इज्जत बख्शी। सब्र और इस्तिकामत। उन्होंने सब्र किया और अपने ईमान पर कायम रहे। अल्लाह ने उनके सब्र का सिला दिया और उन्हें अपनी निशानी बना दिया। अल्लाह की कुदरत। 309 साल तक उन्हें जिंदा रखना, उनके जिस्मों को महफूज रखना, सूरज को उन पर न आने देना, ये सब अल्लाह की अजीम कुदरत की निशानियां हैं। क़यामत की निशानी। असहाब कहफ का वाक़या इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मर्दों को दोबारा जिंदा करेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे इन नौजवानों को सदियों बाद जिंदा किया गया। आज भी तुर्की के शहर सेलचौक के करीब एक पहाड़ी पर एक गार मौजूद है जिसे असहाब कहफ गार कहा जाता है। हर साल हजारों ज़ायरीन वहां जाते हैं और अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़ये को हमेशा के लिए महफूज कर दिया ताकि क़यामत तक आने वाले लोग इससे सबक हासिल करें। सूरत अल-कहफ जो हर जुमा को पढ़ी जाती है हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की हिफाजत में रहने वाले कभी मगलूब नहीं होते। असहाब कहफ ने हमें बताया कि सच्चाई कभी मरती नहीं, वो वक्त के दरियाओं में गुम होकर भी फिर उभरती है और ईमान की रोशनी जुल्मत की हर चादर को चीर कर फैल जाती है। ये थी असहाब कहफ की दीसत।